students, welcome back to my channel Bansal Biology. Today the lecture is a rank booster lecture. It is a lecture number 3 and it is a very important topic from the unit genetics. The topic is bacterial genetics, and in bacterial genetics specifically today we are going to see about the conjugation. It is a very important topic. Many questions are asked from this topic, plus this topic is so easy, so easy that you can easily solve the questions if you know the concept very well. So let's get started with the video, guys. So first of all, if we see about the bacterial reproduction or bacterial transfer of genes, so here we'll see that bacterial transfer of genes. How bacteria can transfer its genes? So there are three methods from that the bacteria can transfer its gene. The first is conjugation. About that we are going to see today. The next is transduction. And the third one is transformation. Okay, so today we are going to see about the conjugation. Conjugation is a type of sexual reproduction in the bacteria. ये एक sexual reproduction का type है in bacteria, but not combined with the sexual reproduction that you have studied till now in animals or in plants. What in animals or in plants occur is that normally there is a female gamete and there is a male gamete, right? And the reproduction occurs in between in them, and one zygote is formed, and that zygote is diploid. Okay, we have seen this kind of condition in normally, but this kind of condition does not occur in bacteria. In bacteria, the conjugation is totally different. About that we'll see in a moment. Just remember 2 points is that the first point is in conjugation, the transfer of genes occur unidirection. The transfer of genes is unidirection. What is the meaning of unidirection? That the transfer of gene from one bacteria to another bacteria will occur in one direction. It's not vice versa. It's just one direction. You will get this point very easily when we move further. So just wait about this. Just remember about this first point. And the second point is that no pure diploid is formed. No pure diploid organism is formed. Like in this case, what we have seen in humans or in plants or in animals, there is a pure diploid zygote is forming. But it is not condition in the bacteria. We'll see this point in just a moment. First, let's see about the growth of bacteria. This is a very important point, I must tell. I have to shift this here. Yes. So this is a very important point that when we are growing a bacteria, we have to grow them in a medium. Medium क्या होता है? For example, if we are eating food, okay, we are able to do our activity. Why? Because we are eating some food, and that food is giving us energy. 3-4 दिन तक खाना मत खा के देखो, what will happen? Our energy will be totally down, will not be able to do anything. Similarly, the bacteria will also need some food. It also needs some nutrition to grow, to divide, because they divide in very less time. So there are two types of medium. Very important point. I must tell you that there are two types of medium. One is minimal medium, and the second is complete medium. Okay, you are getting the point from the name only. What is minimal medium? Minimal medium is that a medium that contains minimum amount of nutrition. It contains minimum amount of nutrition. And in complete medium, there are all the nutritions are present in the complete medium. For example, if I say that bacteria needs cellulose to grow, okay, a bacteria needs cellulose for its growth. But what I did, I have provided in this minimal medium glucose. I didn't provide it cellulose, but the bacteria must be capable of making cellulose from the glucose. Okay, so मैंने cellulose directly provide नहीं किया, लेकिन minimal medium में glucose provide कर दिया, जिसको use करके bacteria can make the cellulose. That is minimal medium. And what is complete medium? Complete medium that I am providing everything. I am providing, अगर उसको cellulose, if we need cellulose to grow, then I am providing it cellulose. So that is complete medium and that is minimal medium. In minimal medium, I will provide simple things.
The bacteria has to use the simple things and form the complex things. But in complete, I am providing everything as it is. Okay, so this is the difference between medium. If we move further, this is a very important point. We'll see about the medium. If we see about the strains, when we are growing them, there are two type of strains. One is auxotropic strain, and the another is prototropic strain. Okay, you must have listened about two things, that is, one is wild type and one is mutated type. In each organism you have listened about this only. Who is mutated type? That is the original one. It doesn't have gone any mutation. It is able to form nearly all the things. And what is mutated type organism? That some kind of mutation has occurred in this organism, so it won't be able to produce all the things. Okay, depending on them, there are two type of strains, auxotropic and prototropic. What are auxotropic strains? Auxotropic strains are the mutated strains. Auxotropic strains are the mutated strains and prototropic are the wild type. They are the wild type. If I grow both of them separately on minimal medium, I am growing both of them in minimal medium separately. Okay, separately I am growing them. So what will happen? This prototropic type will able to grow here because it can make all the things. But this auxotropic will not be able to grow as it is mutated type. So it won't be able to make all the things. For example, I say that there are 5 things. First is adenine. Second is thiamine. Third is biotin. The biotin is vitamin. Thiamine is vitamin. And tryptophan and arginine. Tryptophan and arginine are amino acids. Adenine is a nucleotide. Thiamine and biotin is vitamins. So positive. These all are positive. Very important point. Whenever you are solving bacterial genetics, you will see this positive sign. What is the meaning of these positive signs? That the bacteria can produce all of these things. So the prototropic is positive for all of them because it can form all these conditions, these things. But the auxotropic is positive for adenine, is positive for thiamine, but is negative for biotin. It is positive for tryptophan and it is negative for arginine, right? So if I provide a minimal medium and I haven't provided biotin and arginine in the medium, अगर मैं biotin और arginine उस medium में provide नहीं करूँगी, if biotin and arginine मैंने नहीं provide किया, I haven't provided in the medium, so this auxotropic won't be grown. So the auxotropic won't show its colonies in this because it needs two things, biotin and arginine, and I haven't provided them in minimal medium. कितने दुष्ट हूँ ना मैंने provide ही नहीं किया, but that's my choice. तो मैंने provide नहीं किया तो it auxotropic strains were not able to grow. So वो grow नहीं हुए. While in prototrophic medium, the prototrophic strains minimal medium था और मैंने कुछ भी provide नहीं किया. I haven't provided anything in the minimal medium, but still it shows its colonies. Prototropic was able to show its colony because it can make these all things that is essential for the growth of prototropic organism. So you have to remember two things, positive as in the organism can make these things and negative as in the organism cannot make these things. Just remember 2 points right now. पॉजिटिव इज कि वो ऑर्गेनिज्म वो चीज़ें बना सकता है, नेगेटिव मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म वो चीज़ें नहीं बना सकता. उस हिसाब से दो स्ट्रेन्स है, ऑक्सोट्रॉपिक एंड प्रोटोट्रॉपिक. ऑक्सोट्रॉपिक मतलब वो ग्रो नहीं हो पाएगा मिनिमल मीडियम में, एंड प्रोटोट्रॉपिक मतलब इट विल बी एबल टू ग्रो इन मिनिमल मीडियम. लेट्स मूव फर्दर नाउ. Next there were two scientists by the name of Lederberg and Tatum. There were two scientists. Abhi nobody knows about conjugation. These scientists doesn't know about conjugation, so they were doing some experiments. So what they did, they take two strains, strain A and strain B. You can see there this strain cannot make methionine and biotin vitamin, and these strain cannot make threonine, leucine and thiamine. ठीक है.
दैट मीन्स दैट दीज टू स्ट्रेन्स आर म्यूटेटेड. दोनों के दोनों स्ट्रेन्स कैसे हैं? दोनों के दोनों स्ट्रेन्स म्यूटेटेड है. वी गॉट दैट पॉइंट. So now what they did, they grow them in minimal medium separately. इन दोनों का ही उन्होंने मिनिमल मीडियम में ग्रो किया सेपरेटली. एंड व्हाट दे फाइंड आउट कि कोई कॉलोनी फॉर्म नहीं हुई. नो कॉलोनी फॉर्म. ना इसमें कोई कॉलोनी फॉर्म हुई नॉर इसमें नो कॉलोनी फॉर्म. Right? Why no colony form? Obviously because we haven't provided in the medium methionine and biotin for strain A and threonine, leucine and thymine for strain B. ठीक है. But what they did in the next experiment, what they did, they take them together. उन्होंने क्या लिया? Together इनको लिया और एक डिश में ग्रो किया, एक पेट्री प्लेट पे ग्रो किया. एंड व्हेन दे हैव सीन, उनको क्या मिला? देयर वर कॉलोनीज. There were colonies growing in this petri plate. Colonies were there. And this petri plate was also provided with minimal medium only. Okay? With minimal medium only. So what Liederberg and Tatum came to know was that there was some transfer of the genetic material occurred between these two strains. That's why colonies bani. But they didn't know what is the process and anything. Just they came to know that there was transfer of some of the genetic material from one strain to the another strain. That why the another strain was able to form its colonies. Right? So now if we see further, there was one more scientist. उनका नाम क्या था? His name was Bernard Davis. What he used YouTube. Not our YouTube. जिस पे आप लेक्चर दे रहे हो वो YouTube नहीं, जो हमारी केमिस्ट्री में YouTube होती है. He used this kind of tube. Okay, this U-tube. And what he was, he separated this U-tube with this filter. That filter contains pore. He separated them with a pore filter, and this pore filter was so small. इसमें pores तो थे, but it was so small कि bacteria can't pass through it. Bacteria cannot pass through it. ठीक है. What he did, he kept here strain A. यहाँ पे उसने रखा strain A को towards this side, and toward the another side he kept strain B. Strain B. And both were mutated for some things. For example, it can make methionine, it can make thymine, it can make biotin, but it can't make leucine. Okay, and here it can make leucine. It can make methionine, but it can't make thiamine. Negative or nothing, both are okay. And biotin. So ये biotin और thiamine नहीं बना पा रहा है और ये leucine नहीं बना पा रहा है. जब बर्नार्ड डेविस ने when he grow them together, उसने इस YouTube में grow किया. So what he found, क्या उसको colonies मिलेगी या उसको colonies नहीं मिलेगी? He didn't found any colonies. आफ्टर द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट उसको कोई कॉलोनी नहीं मिली. नो कॉलोनीज वर ग्रोन. वाई दिस हैपेंड? दिस हैपेंड बिकॉज द बैक्टीरिया वर नॉट एबल टू पास. बैक्टीरिया ना इधर से इधर जा पा रहे थे, ना इधर से इधर जा पा रहे थे. तो फ्रॉम हियर बर्नेट केम टू नो दैट फॉर द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बैक्टीरिया, जो दो स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया हैं, वो कम टुगेदर आए, उनमें फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए. इफ देयर इज अ फिजिकल कांटेक्ट देन ओनली द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल कैन अकर. पहले साइंटिस्ट ने क्या बताया कि जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होगा, बट दिस साइंटिस्ट टोल्ड कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा, बट कब होगा? व्हेन देयर इज अ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द टू स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया. So from here what he came to know, the process is known as conjugation. कि जो बैक्टीरिया है वो क्या शो करते हैं? They show conjugation. Now what is conjugation? Conjugation is that there is one bacterial strain A, and there is another bacterial strain B. यहाँ पे A है, यहाँ पे B है. These two form a bridge-like structure. ये दोनों क्या फॉर्म करेंगे? ब्रिज फॉर्म करेंगे. ठीक है. ब्रिज होता है ना जो दो सड़क को भी कनेक्ट करता है, या फिर आपने मुंबई में सी लिंक सुना होगा जो बैंड्रा और साउथ मुंबई को कनेक्ट करता है. ठीक है. तो एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ जिसको व्हाट वी से सेक्स पिल्लाई.
So what occurs in this? There is a sex pili formed between the two strains and the transfer of genetic material occurs from one strain to another. So this तरफ transfer of genetic material occur हो रहा है. तो यहाँ से वो यूनिडायरेक्शनल वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि यूनिडायरेक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि सिर्फ यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जेनेटिक मटेरियल नहीं जाएगा, ए स्ट्रेन से बी स्ट्रेन जाएगा. So this is what? This is unidirectional. And this is what? Conjugation. Conjugation is that two bacteria come together, they form a sex pili between them, and from that one strain transfer its genetic material to the another strain. That is what? That is genetic material transfer in bacteria. If we see further, there is a very important thing, that is F factor. In question you will definitely see F factor, the mention of F factor. If you know about genetics, you must be know if we're talking about any kind of bacteria, then the bacteria contains two type of genes. One is its bacterial DNA and the another is plasmid. Sorry. And the another is plasmid. Plasmid is what? Plasmid is extra chromosomal DNA. ठीक है, इट इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए. ठीक है, ये जो है मेन क्रोमोसोम का पार्ट नहीं होता, मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम का पार्ट नहीं होता, बट वो एक्स्ट्रा होता है. ठीक है, दिस एक्स्ट्रा ये बहुत सारे अलग टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करता है. दिस प्लाज्मिड्स परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, बट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द मेन बैक्टीरियल डीएनए. सो दिस प्लाज्मिड इज नोन एज एफ फैक्टर. This plasmid is known as F factor. So what is the function of this F factor is that the first function is of F factor is कि it will be responsible for formation of sex pili. ये जो है sex pili का formation करवाएगा और ट्रांसफर भी इसका ही होता है ड्यूरिंग दी ट्रांसफरिंग और ड्यूरिंग द कंजुगेशन. जो असल में ट्रांसफर में जाता है वो कौन जाता है? प्लाज्मिड जाता है, यानी कि एफ फैक्टर जाता है और यही क्या करवाता है? स्टार्ट करवाता है ट्रांसफर ऑफ जीन्स. यही क्या करवाएगा? सेक्स पिलाई की फॉर्मेशन करवाएगा, यही क्या करवाएगा? ट्रांसफर करवाएगा और स्टार्ट भी क्या करवाएगा? यही करवाएगा. ठीक है, सो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ एफ फैक्टर. एफ फैक्टर को हम सेक्स फैक्टर भी बोलते हैं. एफ फैक्टर को हम सेक्स फैक्टर भी बोलते हैं, जो एक्चुअल में क्या है? प्लाज्मिड है. सेक्स पिलाई भी बनाया और उसने ट्रांसफर भी करवाया. सो इफ वी सी व्हाट हैपेंस अबाउट द ट्रांसफर ऑफ F factor, that is transfer of the plasmid. One thing you have to remember that there are two names. One is F positive and the another is F negative. F positive क्या होता है? ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास F factor है. F negative मतलब ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास F factor नहीं है. ठीक है, तो if I say, अगर मैं यहाँ पे कंजुगेशन बिल्कुल अच्छे से पढ़ने की कोशिश करूँ तो what is happening? There are two bacterias. First bacteria and second bacteria, two strains of bacteria. The second strain doesn't contain a F factor. तो इसको मैं क्या बोल दूंगी? ये है F negative और ये है F positive. ठीक है, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो प्लाज्मिड होता है और जो क्रोमोसोम होता है दोनों कैसे? बोथ आर डबल स्ट्रैंडेड. बोथ आर डबल स्ट्रैंडेड. ओके, सो नाउ व्हाट विल हैपन? अगर F नेगेटिव के पास कोई प्लाज्मिड नहीं है तो ना तो वो सेक्स पिलाई बना सकता है, ना ही वो ट्रांसफर कर सकता है. तो ऑब्वियसली ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा? ट्रांसफर होगा F पॉजिटिव से F नेगेटिव पे. नाउ व्हाट विल हैपन? नाउ द ट्रांसफर ऑफ F फैक्टर्स विल अकर. सो व्हाट विल बी हैपनिंग? देयर विल बी अ सेक्स पिलाई फॉर्मेशन विल अकर बिटवीन दीज टू प्लाज्मिड्स. किडनी जैसा लग रहा है बट किडनी नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो F प्लाज्मिड है ना, ये निक हो जाएगा. निक मतलब ये कट जाएगा. कटेगा तभी तो वो ट्रांसफर हो पाएगा. इफ देयर इज अ कट इन द प्लाज्मिड देन ओनली इट विल बी ट्रांसफर. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? एक निक होगा किसमें? प्लाज्मिड में. एंड देन देयर विल बी अ ट्रांसफर. एंड देन देयर विल बी अ ट्रांसफर. सो यहाँ से इसका क्या होने लग गया? यहाँ से इसका होने लग गया ट्रांसफर इन दिस. ठीक है, जैसे जैसे ट्रांसफर आगे बढ़ेगा, एज लॉन्ग एज ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस, लेट मी ड्रॉ दिस. सो यहाँ पे ये कंडीशन आ गई है और यहाँ पे ये फर्दर मूव करते 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 इसने इतना पूरा स्ट्रैंड बना लिया है और यहाँ पे ये प्रेजेंट है. सो अब क्या होगा? क्या अब यहाँ पे ये सिंगल स्ट्रैंडेड ही रह जाएगा और यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड ही रह जाएगा? नहीं.
अब क्या करेंगे, ये दोनों के दोनों क्या करने लगेंगे, रेप्लिकेशन करने लगेंगे। दोनों के दोनों जो प्लाज्मिड्स है दे विल स्टार्ट रेप्लिकेशन। सो नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ स्टार्ट ऑफ रेप्लिकेशन विल अकर, स्टार्ट ऑफ रेप्लिकेशन विल अकर। सो मोर क्लैरिटी में इस रेप्लिकेटेड वाले को ग्रीन कलर से बना देती हूँ। तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर की रेप्लिकेशन होने लगी और यहाँ पे भी क्या होने लग जाएगा, रेप्लिकेशन होने लग जाएगा। सो इन दी एंड हमें क्या मिल जाएंगे, इन दी एंड विल गेट 2 bacterias that have their bacterial genes as well as these two have their own F factor. These two have their own F factor. तो अब ये भी F पॉजिटिव रहेगा और ये भी क्या हो गया, ये भी F पॉजिटिव हो गया. So we have crossed one F positive and one F negative and we got in the end 2 F positive. So these two plasmid will also starting to self replicate. मैंने कहा है कि ये दोनों प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, सर्कुलर होते हैं और सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं. तो ये अपना सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकते हैं. सो इन द एंड विल गेट 2 F पॉजिटिव बैक्टीरियम. ये ध्यान रखना, कभी भी F पॉजिटिव और X पॉजिटिव की हम क्रॉसिंग नहीं करवा सकते और कभी भी हम F नेगेटिव और F नेगेटिव की क्रॉसिंग नहीं करवा सकते, कंजुगेशन नहीं करवा सकते. हमेशा कंजुगेशन के बीच में होगा F पॉजिटिव और F नेगेटिव के बीच में ही कंजुगेशन होगा. सो दिस इज द ट्रांसफर ऑफ फैक्टर यूजिंग द सेक्स पिल्लाई. ठीक है, ये एक बात थी. अब क्या आता है, अब आता है ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियल जीन्स. क्या पहली वाली कंडीशन में कहीं पे भी बैक्टीरियल जीन्स का ट्रांसफर हुआ? क्या कहीं पे भी ये मेन जीन्स थे इनका कोई ट्रांसफर हुआ है? मेन जीन का कहीं पे भी ट्रांसफर हुआ है तो मुझे बता दो. नहीं, सिर्फ प्लाज्मिड का ट्रांसफर हुआ है. बट कंजुगेशन में बैक्टीरियल जीन्स का भी ट्रांसफर हो सकता है. अब हम देखेंगे वो कैसे हो सकता है. वंस अगेन मैं ले लेती हूँ 2 strains of bacteria having their own bacterial genes and plasmid. इसके पास है इसका खुद का बैक्टीरियल जीन और इसका प्लाज्मिड भी. क्या इसके पास होगा इसका प्लाज्मिड? नहीं. ये क्या है, ये है F नेगेटिव और ये क्या है, ये है F पॉजिटिव. ठीक है, अब इन दोनों में नॉर्मली F फैक्टर का ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन अब क्या होगा, अब इसमें बैक्टीरियल जीन्स का भी ट्रांसफर होगा. नाउ विल सी दैट बैक्टीरियल जीन्स का कैसे ट्रांसफर होता है. So I have taken this red colored one and I have made this bigger. So this is its bacterial chromosome and plasmid को मैं different color से बना रही हूँ for more clarity. अब इसमें क्या होगी, crossing over होगी. There will occur a crossing over between these two. So there will be a crossing over between these two. Crossing over होने की वजह से हमें क्या मिलेगा, हमें एक ऐसा बैक्टीरिया मिलेगा जिसका बैक्टीरियल जीन्स एंड F फैक्टर इज ज्वाइन टुगेदर. इसका बैक्टीरियल जीन और F फैक्टर क्या हो चुके हैं, ज्वाइन हो चुके हैं. ऐसी स्ट्रेन को हम क्या बोलते हैं, ऐसी स्ट्रेन को हम बोलते हैं HFR, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट. हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट HFR strain का. Now this HFR strain will be passed to the F negative. So अब ये जो HFR strain है ये पास होगी. इसकी क्लैरिटी के लिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं. So now what will happen? Let me draw once again. So there is this one जिसके पास क्या है, जिसके पास अब टोटल एक HFR strain है जिसमें प्लाज्मिड ज्वाइन हो चुका है. किसके साथ? प्लाज्मिड ज्वाइन हो चुका है बैक्टीरियल जीन्स के साथ. और यहाँ पे एक दूसरा प्रेजेंट है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ खुद का बैक्टीरियल जीन है, इसके पास प्लाज्मिड नहीं है. नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ सेक्स पिल्लाई. सो इट इज HFR स्ट्रेन एंड इट इज F नेगेटिव स्ट्रेन. तो इसमें किसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है या किसका कंजुगेशन हो रहा है, HFR एंड F नेगेटिव का. सो नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ दिस विल स्टार्ट टू पास इट्स HFR to this one. So ये ऐसे है and it has started to pass its, ये इसने अपना
पास करना शुरू कर दिया। हमेशा पास होना कहाँ से शुरू होगा? एफ प्लाज्मिड से ही शुरू होना होगा, क्योंकि एफ प्लाज्मिड के पास ही वो जगह है जहाँ से क्या हो सकता है, शुरुआत हो सकती है ट्रांसफर की। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन क्या है? ओरिजिन एफ फैक्टर की ऐसी लोकेशन है जहां से क्या होता है, जहां से ट्रांसफर शुरू होगा, जहां पे कट लगेगा और जहां से क्या शुरू होगा, ट्रांसफर ऑफ एफ फैक्टर शुरू होगा इस एक जीन से दूसरे जीन तक, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक। तो यहाँ से क्या होगा, ट्रांसफर होगा। सबसे पहले कौन चला गया? एफ प्लाज्मिड चला गया, और उसके बाद ये जो बैक्टीरियल जीन है ये भी चला जाएगा। So now see, now there is a very important point. Now what will happen? इसके खुद के पास भी अपने बैक्टीरियल जीन्स प्रेजेंट है, और इसने अब इसके भी बैक्टीरियल जीन्स ले लिए, राइट? इसके पास खुद के भी अपने बैक्टीरियल जीन्स प्रेजेंट थे, लेकिन अब इसने इसके भी बैक्टीरियल जीन्स ले लिए। So now what will happen? Now recombination will occur. Now recombination will occur after this process. What will happen? Recombination will occur between these two genes that is present in this. और फिर recombination होने के बाद जो process है वो आगे बढ़ेगा, ठीक है? So now what will happen? Now recombination will occur. So just you have to remember that transfer can occur in two condition. एक F positive F negative के बीच में हो सकता है, और एक HFR और F negative के बीच में हो सकता है। HFR में बैक्टीरियल जीन्स भी जाएंगे, लेकिन F positive में बैक्टीरियल जीन्स का ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किसका ट्रांसफर होगा? सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मिड का ट्रांसफर होगा। ऐसे ही देयर इज वन मोर थिंग दैट इज नोन एज एफ डैश फैक्टर्स। एफ डैश फैक्टर्स, दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। एफ डैश फैक्टर में सिर्फ सम ऑफ द बैक्टीरियल जीन्स आर ट्रांसफर्ड, सम ऑफ द बैक्टीरियल जीन्स आर ट्रांसफर्ड, नॉट ऑल द बैक्टीरियल जीन्स आर ट्रांसफर्ड, बट सम बैक्टीरियल जीन्स आर ट्रांसफर्ड। So once again, if I take a bacteria that contains its what? That contains its bacterial genes and its plasmid. So by chance, what happened? By chance, whole bacterial gene doesn't combine with it. Only some part, only some part of the bacterial gene combined with this F factor. सिर्फ थोड़े से पार्ट ने क्या की, इसके साथ कॉम्बिनेशन की, इसके साथ क्रॉसिंग ओवर की। सो ओनली सम पार्ट इज प्रेजेंट इन प्लाज्मिड और एफ फैक्टर, और अब सिर्फ ये सम फैक्टर ही ट्रांसफर होगा किसमें? हमारे दूसरे बैक्टीरिया में। सो ओनली सम पार्ट विल बी ट्रांसफर्ड इन द अदर वन, एंड दिस एफ प्लाज्मिड विल बी ट्रांसफर्ड. Okay, so here only some part is transferred, so it is not properly diploid. What it is mero-diploid. Mero-diploid क्यों बोला है? Mero-diploid इसलिए बोला है क्योंकि सिर्फ थोड़ा ही अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल जीन ट्रांसफर हुआ है। समझो यहाँ पे ये जो ट्रांसफर हुआ है ये क्या है? ये लैक जीन था, ठीक है? तो यहाँ पे इसके पास लैक जीन आ गया, और इसके पास अपना खुद का भी लैक जीन प्रेजेंट होगा, लैक्टोज वाला जीन, खुद का भी लैक्टोज वाला जीन प्रेजेंट था, और इसने जो डोनर है, डोनर का भी क्या ले लिया? लैक जीन ले लिया। तो अब ये लैक जीन के लिए डिप्लॉइड हो गया, लेकिन बाकी सारे जीन के लिए तो ये अभी भी हैप्लॉइड है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ऐसी कंडीशन को हम मीरो डिप्लॉइड कहते हैं। मीरो डिप्लॉइड मतलब कुछ ही जीन्स के लिए डिप्लॉइड होना। मैंने आपको कहा था कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो प्योर डिप्लॉइड नहीं हो सकते, तो यही है कि वो मीरो डिप्लॉइड है। ऐसे ही अगर मैं HFR स्ट्रेन में भी देखूं, तो HFR स्ट्रेन में अगर आप पूरा बैक्टीरियल जीन प्लस प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करोगे ना, तो दैट्स नॉट पॉसिबल, बहुत रेयर होता है। क्यों रेयर होता है? क्योंकि लिए इसको ट्रांसफर करने में बहुत टाइम लगता है। इकोलाई में, जिसको हम जनरली कंसीडर करते हैं, उसमें 100 मिनट्स लगते हैं ट्रांसफर करने में एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, पूरे बैक्टीरियल जीन को और प्लाज्मिड को भी। और जब हम इतने लॉन्ग प्रोसेस चलते हैं ना, इतना लॉन्ग प्रोसेस हो नहीं पाता, बीच में ही क्या होता है? वो कट हो जाता है, बीच में ही जो ट्रांसफर हो रहा प्लाज्मिड कट हो जाएगा या बैक्टीरियल जीन कट हो जाएगा, तो ये इंटरप्ट हो जाएगा और ये सेक्स पिल्लाई टूट जाएगी दोनों के बीच में, तो सम अमाउंट ही पास हो पाएगा। इसलिए प्योर डिप्लॉइड बहुत रेयरली बनेंगे, जनरली क्या बनते हैं? मीरो डिप्लॉइड बनते हैं, कि सम जीन्स के लिए वो क्या हो गए? दे आर डिप्लॉइड, right? So this is what? This is mero diploid. So remember that it is a rare condition.
इकोलाई में होने में ही 100 मिनट लग जाते हैं, तो बीच में ही प्रोसेस इंटरप्ट हो जाता है और वो कट हो जाते हैं. Okay, so this was about F factor, HFR factor and F dash factor. Now let's try to solve some of the questions so that हमें समझ में आए कि ये जो हमने भी कॉन्सेप्ट समझा है इसको यूज कैसे करना है. जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो देखो, अब जब HFR स्ट्रेन बनती है ना, तो ज़रूरी नहीं है HFR स्ट्रेन एक ही जैसे बने. देखो, सम कंडीशन में ये हो सकता है कि यहाँ पे एक ये था बैक्टीरियल क्रोमोसोम और यहाँ पे था प्लाज्मिड, तो हो सकता है ये प्लाज्मिड यहाँ पे अटैच हो सकता है ये प्लाज्मिड यहाँ पे जाके अटैच हो जाए, हो सकता है प्लाज्मिड जो है यहाँ पे भी अटैच हो जाए. प्लाज्मिड कहीं पे भी जाके अटैच हो सकता है, क्रॉसिंग ओवर कहीं पे भी हो सकती है. तो इस हिसाब से डिफरेंट टाइप ऑफ HFR स्ट्रेन्स बन सकते हैं. तो मैंने इस क्रॉसिंग ओवर से लिए 3 HFR स्ट्रेन, HFR स्ट्रेन 1, HFR स्ट्रेन 2 एंड HFR स्ट्रेन 3. ठीक है, इन तीनों का वी हैव डन दी क्रॉसिंग विद दी F नेगेटिव फैक्टर. 3 F नेगेटिव फैक्टर लिए, 3 HFR स्ट्रेन लिए. ओके, सो मुझे तीनों में रिजल्ट डिफरेंट ले. मैंने जब HFR स्ट्रेन 1 को यूज किया तो मैंने ट्रांसफर देखा. ट्रांसफर में मुझे इस F नेगेटिव में क्या क्या मिला. मुझे सबसे पहले मिला आर्जिनिन पॉजिटिव, आफ्टर दैट आई गॉट सेरीन पॉजिटिव, आफ्टर आई गेट ल्यूसीन पॉजिटिव, उसके बाद मुझे मिला बायोटीन पॉजिटिव. ठीक है, मुझे इस तरह से मिला. अगर मैंने दूसरा लिया HFR, जब मैंने 2 लिया और मैंने उसका ट्रांसफर किया इस F नेगेटिव में, तो मुझे सबसे पहले मिला सेरीन, उसके बाद मुझे मिला ल्यूसीन, उसके बाद मुझे मिला बायोटीन और उसके बाद मुझे क्या मिला, आर्जिनिन. अब मैंने थर्ड स्ट्रेन जब लिया, थर्ड चेन का जब मैंने ट्रांसफर किया तब मेरे को क्या मिला, सबसे पहले मुझे मिला बायोटीन, उसके बाद मिला मुझे आर्जिनिन, उसके बाद मुझे मिला सेरीन और उसके बाद मुझे मिला ल्यूसीन. तीनों में मैंने देख लिया. क्या मैं अब इसको यूज करके एक मैप बना सकती हूँ, बैक्टीरियल मैप बना सकती हूँ कि जो बैक्टीरिया के मैप के ऊपर या बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के ऊपर ये सारे जीन्स कैसे प्रेजेंट होंगे. बिल्कुल इजी चीज़ है. अभी मुझे दिख रहा है कि आर्जिनिन जो है वो सेरीन के साथ जा रहा है और किसके साथ जा रहा है, बायोटीन के साथ जा रहा है. आर्जिनिन यहाँ पे सेरीन के साथ गया, यहाँ पे बायोटीन के साथ गया और यहाँ पे भी आर्जिनिन के साथ गया. तो मैं बोल सकती हूँ कि सेरीन के एक तरफ क्या है, बायोटीन प्रेजेंट है और एक तरफ क्या है, आर्जिनिन प्रेजेंट है. राइट, सेरीन के एक तरफ क्या प्रेजेंट होगा, आर्जिनिन, और सेरीन के एक तरफ क्या प्रेजेंट होगा, बायोटीन. ओके, फिर मैंने देखा ल्यूसीन. ल्यूसीन जो है किसके साथ जा रहा है, ल्यूसीन जो है सेरीन के साथ भी जा रहा है. सॉरी, बायोटीन यहाँ पे नहीं होगा, बायोटीन इधर होगा. आर्जिनिन के एक तरफ है सेरीन और एक तरफ है बायोटीन. ठीक है, उसके बाद जब मैंने देखा ल्यूसीन को, ल्यूसीन के एक तरफ है सेरीन, एक तरफ है बायोटीन. ल्यूसीन के एक तरफ है सेरीन, एक तरफ है बायोटीन. यही कंडीशन है, यहाँ पे है सेरीन. तो मैं समझ गई कि ल्यूसीन कहीं तो यहाँ पे होगा जिसके एक तरफ क्या है, सेरीन और एक तरफ है बायोटीन. तो मैंने ऐसे करके एक जीन मैप बना दिया. इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे CSIR नेट में, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे. पूछेंगे आपको ऐसे स्ट्रेन्स दे दिए, ट्रांसफर हो रहा है और आपसे पूछा है कि जीन मैप बताओ. ठीक है, तो इनको देख के आपको बताना है जीन मैप क्या है. ये F नेगेटिव इन सब चीज़ों के लिए नेगेटिव था, ये जो HFR है वो इन सब चीज़ों के लिए पॉजिटिव था. तो उसका क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, तो एक एक करके ऐसे ट्रांसफर हुआ. तो हर एक जगह पे अलग अलग तरह से HFR स्ट्रेन बने. एक और क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, हम इन क्वेश्चंस को टाइम को यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं. देखो, प्लाज्मिड के जो सबसे पहले बाजू में प्रेजेंट होगा वो सबसे पहले जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे एक ऐसा HFR स्ट्रेन प्रेजेंट है, एक HFR स्ट्रेन प्रेजेंट है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से ट्रांसफर होना शुरू किया है तो यहाँ तक तो ट्रांसफर हो गया प्लाज्मिड का ही. फिर यहाँ पे जो सबसे पहला जीन प्रेजेंट होगा उसका ट्रांसफर होगा, फिर यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा उसका होगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे. तो सबसे पहले अगर मैं 5 मिनट में ये प्रोसेस रोक दूँ तो कौन जाएगा, सिर्फ ये जाएगा. अगर 10 मिनट में कौन से प्रोसेस रोक दूँ तो सिर्फ ये 2 जाएंगे. अगर मैं 15 मिनट में रोकूँ तो सिर्फ ये 3 जाएंगे. इसी को यूज करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. इसी प्रोसेस को हमें यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमने 2 HFR स्ट्रेन लिए. जो पहला HFR था वो आर्जिनिन, ल्यूसीन और गैलेक्टोज बना पा रहा था, और STR के लिए वो क्या था, सेंसिटिव था. 2 चीजें और है, सेंसिटिव और रेजिस्टेंस. कोई हमने टॉक्सिक चीज दे दी मिनिमल मीडियम में, तो बैक्टीरिया उसके लिए सेंसिटिव है या उसके लिए रेजिस्टेंस है.
मतलब कि क्या वो उसमें ग्रो हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। अगर सेंसिटिव है मतलब नहीं ग्रो हो पाएगा, रेजिस्टेंस है तो ग्रो हो पाएगा। ठीक है, तो सेंसिटिव और रेजिस्टेंस भी आपको याद रखना है प्लस नेगेटिव के साथ। सो लेट्स मूव फर्दर। तो यहाँ पे क्या बोला है, ये आर्जिनिन, ल्यूसीन, गैलेक्टोज के लिए क्या है, पॉजिटिव है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए सेंसिटिव है। STR मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन। वहीं जो HFR स्ट्रेन 2 है, आर्जिनिन के लिए पॉजिटिव है, हिस्टीडीन के लिए पॉजिटिव है, गैलेक्टोज के लिए पॉजिटिव है, PUR के लिए रेजिस्टेंस है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए सेंसिटिव है। ये आपको इतना क्लियरली नहीं दिख रहा होगा तो मैं फिर से लिख लेती हूँ। पहला वाला जो है वो आर्जिनिन के लिए पॉजिटिव है, ल्यूसीन के लिए भी पॉजिटिव है, गैलेक्टोज के लिए भी पॉजिटिव है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए सेंसिटिव है। यानी कि अगर मैंने मीडियम में स्ट्रेप्टोमाइसिन दिया तो ये ग्रो नहीं हो पाएगा। ऐसे अगर दूसरा स्ट्रेन जो है वो आर्जिनिन के लिए पॉजिटिव है, हिस्टीडीन के लिए पॉजिटिव है, गैलेक्टोज के लिए भी पॉजिटिव है, PUR के लिए रेजिस्टेंस है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए सेंसिटिव है। यानी कि दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए सेंसिटिव है। इन दोनों का हमने क्रॉस करवाया किसके साथ, F स्ट्रेन के साथ, जो कि क्या है, जो कि आर्जिनिन के लिए नेगेटिव है, ल्यूसीन के लिए भी नेगेटिव है, गैलेक्टोज के लिए नेगेटिव है, हिस्टीडीन के लिए नेगेटिव है, PUR के लिए सेंसिटिव है, सिर्फ स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए रेजिस्टेंस है। सिर्फ किसके लिए रेजिस्टेंस है, वो स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। जब हमने क्रॉस करवाया इंटरप्शन के साथ, हमने क्रॉस करवाया तो हमें दो ग्राफ मिला। ये है HFR1 के लिए और ये है HFR2 के लिए। जब हमने HFR1 के साथ करवाया तो हमें 10 मिनट में कौन कौन ट्रांसफर हुए, आर्जिनिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। 20 मिनट में क्या ट्रांसफर हुए, ल्यूसीन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। और 30 मिनट में क्या ट्रांसफर हुए, गैलेक्टोज और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो मैं इसमें पहले वाले का देख के मैं ये बोल सकती हूँ कि सबसे पहले आर्जिनिन ट्रांसफर हुआ, फिर STR ट्रांसफर हुआ, फिर ल्यूसीन ट्रांसफर हुआ, और फिर गैलेक्टोज ट्रांसफर हुआ। मैं ये बोल सकती हूँ ना, ये देख के मिनट के हिसाब से मैं बता सकती हूँ। वहीं पे अगर मैं इसमें देखूँ तो इसमें सबसे पहले आर्जिनिन हुआ है, फिर STR हो रहा है, फिर उसके बाद हिस्टीडीन हुआ है, उसके बाद गैलेक्टोज हुआ है, और उसके बाद PUR ट्रांसफर हुआ है। राइट, मैं ये देख के बता सकती हूँ ना, यहाँ पे ऐसा आ रहा है और यहाँ पे ऐसा आ रहा है। अब मुझे इसको देख के इन दोनों को मिला के मैप करना है, जीन मैप बनाना है, क्योंकि दोनों है तो एक ही स्ट्रेन, बस उसमें जो HFR है वो डिफरेंट हो गए, इसलिए F हमें पता नहीं कहाँ पे उससे कंबाइन हुई, क्रॉसिंग ओवर हुई, तो हमें ये दो मिल गए। नाउ आई विल मैच देम। यहाँ पे एक दिक्कत क्या है, यहाँ पे पहले आर्जिनिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, गैलेक्टोज है। यहाँ पे भी आर्जिनिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, गैलेक्टोज है, लेकिन बीच में यहाँ पे हिस्टीडीन है और बीच में यहाँ पे ल्यूसीन है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हिस्टीडीन को पहले जाना चाहिए या फिर ल्यूसीन को पहले जाना चाहिए? तो मुझे इसके लिए ल्यूसीन और हिस्टीडीन का टाइम देखना पड़ेगा कि ल्यूसीन पहले गया था या हिस्टीडीन पहले गया था। तो मैंने यहाँ पे देखा ल्यूसीन कब गया है, ल्यूसीन गया है 20 मिनट्स पे, लेकिन मैंने यहाँ पे हिस्टीडीन देखा तो हिस्टीडीन कब चला गया, 10 मिनट्स पे ही चला गया। तो हिस्टीडीन कब जाएगा, हिस्टीडीन जाएगा पहले और ल्यूसीन जाएगा बाद में। तो उस हिसाब से अगर मैं मैप बनाऊं मेरा, तो क्या बनेगा, आर्जिनिन, STR, हिस्टीडीन, फिर ल्यूसीन, फिर गैलेक्टोज और फिर PUR। मैंने गैलेक्टोज को बाद में क्यों रखा, क्योंकि गैलेक्टोज जा रहा है 30 मिनट्स पे और ल्यूसीन जा रहा है 20 मिनट्स पे। तो क्या बनेगा, आर्जिनिन, STR, हिस्टीडीन, ल्यूसीन, गैलेक्टोज एंड PUR। इसको देख के मुझे यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पे सबसे पहले ARG दिया हुआ है तो सब ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे किसी में भी STR नहीं दिया हुआ ऑप्शन में, तो मैं STR को हटा देती हूँ क्योंकि वो ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ। उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए हिस्टीडीन। तो यहाँ पे नहीं आ रहा हिस्टीडीन, यहाँ पे नहीं आ रहा हिस्टीडीन, तो मैंने दोनों को ही रिमूव कर दिया। हिस्टीडीन इन दोनों में आ रहा है, फिर क्या आना चाहिए, ल्यूसीन, जो कि इसमें आ रहा है, फिर गैलेक्टोज, फिर PUR। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही हो गया। तो आपको टाइमिंग्स देखना है, टाइमिंग्स को देख के आपको बस प्लॉट करना है, जीन मैप को ऑप्शन में देख के करेक्ट करना है। सिर्फ इतनी सी चीज आपको करनी है। आपको पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, आपको रेजिस्टेंस सेंसिटिव देखना है और उनको देख के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसके पीछे आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या हो रहा है। इससे रिलेटेड जो हम क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा मेरा उसमें मैं डिस्कस करूंगी, उसमें मैं शेयर करूंगी आपके साथ कि उनको कैसे सॉल्व करना है, ताकि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। यहाँ तक आई होप यू हैव रिमेंबर्ड इट वेरी वेल, आपको समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें जो कॉन्सेप्ट है आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। So guys, thank you so much for watching the video. Don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends.